Hello and a very warm welcome to all of you. This is Saif Ahmed, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, we are about to start our P2 worksheet of the topic half-life of chapter nuclear physics. So must remember that this worksheet is really important for your concept building. So let's start from the first question. So in the first question, the count rate measure near a radioactive source drops from 542 counts per minute to 94 counts per minute in 12 hours. The background count remain constant at 30 counts per minute. This concept is really important, that you are being told by the background radiation. So you have to subtract this 30 counts per minute from your total and the remaining as well. So what is the half-life of the source? So students, we have to start from the first part, that our starting count rate is 542 and it descends to 94 in 12 weeks. But must remember that from 542 to 94, you have to take into account the background radiation as well. That's mean you have to subtract this 30 from 542 and you will get 512. And now you have to subtract 94 minus 30 as well and you will gain 64. So याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जहां पे भी बैकग्राउंड रेडिएशन आपको गिवन होगी, बैकग्राउंड का मतलब क्या है? द रेडिएशन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एज ऑल टाइम. तो जितनी भी एनवायरनमेंट में रेडिएशन हर टाइम प्रेजेंट होती हैं वो आपकी बैकग्राउंड रेडिएशन होती है. इसका मतलब है आप जो भी रीडिंग डिटेक्ट कर रहे हो गाइगर मुलर काउंटर से या एनी टाइप ऑफ डिटेक्टर, तो वहां पे आपको बैकग्राउंड को माइनस करना है एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए. ओके बेटा, तो अब मेरे पास आ गया है 512 एंड द नेक्स्ट वन इज 64. सो इफ यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ हाफ लाइफ फ्रॉम 512 to 64, what you have to do, you have to just divide 512 with 2. So this will be first half life and you will get 256. Then you again have to divide 256 with 2 again, you will get 128 and then you will get 64 as well. Done? So बेटा again लो कितनी हाफ लाइफ होगी if you have to divide with 2 again. So आप इसको इस तरह ले, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ. सो द वैल्यू ऑफ n इज 3. ठीक हो गया? अगर ये टेक्निक नहीं आती बेटा, फार्मूला से कर लो. R divided by A is equal to 1 by 2 power n. What is R? R is 64. What is A? 512 beta. What is n? 1 by 2 and you have to find out. So इसको divide करोगे तो यहाँ से बेटा आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 3. You have to use some mathematical rules as well. So अगर n की वैल्यू 3 आ गई, that's mean now you have to find out the half life, which states that n is equal to t divided by t 1 by 2. You have the total time, yes, t 1 by 2 and the value of t is 12 divided by 3 and you get your answer, which is C. So 4 घंटों में बेटा 512 से 64 तक आया जा सकता है. ठीक हो गया? अच्छा जी, the next question is a scientist measure the count rate of a radioactive sample in a laboratory. आपको दिया हुआ बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी दी हुई है, 20 काउंट्स पर मिनट दिया हुआ. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आई होप सो कि उसका मतलब आप मुझसे पहले ही समझ जाएंगे, मेरे बताने से पहले ही समझ जाएंगे. द टेबल शोज दैट द साइंटिस्ट रिजल्ट्स बिफोर द बैकग्राउंड रेडिएशन टेकन इनटू अकाउंट. कहता है बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट या उसको रिजॉल्व करने से पहले या उसको करेक्ट करने से पहले का ये टेबल आपके सामने गिवन है. सो अगेन बेटा यूज करोगे इन सारी रीडिंग्स के साथ क्या कर दोगे, -2 कर दोगे. बट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट इन विच रेंज डज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाई. तो सब में से माइनस नहीं करते, हम चेक कर लेते कि फर्स्ट का हाफ लाइफ कहाँ तक बन जाता है. सो बेटा अगर 20 माइनस करो तो ये बेटा जी आ जाता है 80. ठीक है, 80 में से -20 करो, ये आ जाएगा 60. 65 में से 20 माइनस करोगे बेटा, so you will get 45 obviously, yes 45. And now if you divide 54 तो it will be 34 I guess. ठीक हो गया? बस यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि 80 का डिवाइड करोगे तो ये ऑब्वियसली 40 बन जाता है. सो इन विच रेंज, हाँ जी 40 का आंसर कहाँ पे आता है? क्यों? जस्ट बिकॉज 80 को बेटा 2 से डिवाइड कीजिए ना, हाफ लाइफ होगी तो ये कितनी हो जाएगी 40.
काउंट्स पर मिनट होने चाहिए एक हाफ लाइफ बाद। सो क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो 60 है। क्या ये है? ये भी नहीं है। इसका मतलब है इन बिटवीन आ रहा है 45 से 34 से 45। ओके, सो योर आंसर विल बी 4 to 6 वीक विच इज ए आंसर। ठीक हो गया बेटा जी? कोई मसला परेशानी तो कमेंट में बता दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी, ये अब जरा बेटा आपने ध्यान से देखना है। कह क्या रहा है? द ग्राफ शोज हाउ द काउंट रेट रजिस्टर्ड बाय द काउंटर नियर टू अ सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप चेंजेस ओवर अ पीरियड of a few days. The background count rate is 5 counts per minute. Background radiation again दे देता है। याद रखिएगा ज्यादातर केसेस में आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है? माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है अगर वो स्टेटमेंट दे दे व्हाट इज द हाफ लाइफ शोन ऑन द काउंटर, काउंटर पे क्या हाफ लाइफ शो होगी? तो काउंटर तो मशीन है ना यार, वहां पे तो बैकग्राउंड दोबारा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले स्टेप में बैकग्राउंड माइनस करना होता है, आंसर निकालने के लिए दोबारा ऐड भी करना होता है। ठीक हो गया? फिर आपका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। लेकिन अगर वो सैंपल की बात करेगा फिर माइनस से ही काम चल जाएगा। अगर वो काउंटर की बात करेगा एंड रिजल्ट पे, काउंटर पे बात करेगा व्हाट इज हाफ लाइफ ऑन द काउंटर, सो दैट्स मीन यू हैव टू अगेन ऐड योर बैकग्राउंड रेडिएशन टू द फाइनल रिजल्ट एज वेल। डन हो गया बेटा जी? अब हम बात करते हैं द ग्राफ शोज। हमने पढ़ लिया बैकग्राउंड हमारे पास कितना है जी, 5 काउंट्स पर मिनट। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप? ओके, चेक कीजिए यहाँ पे बेटा क्या रीडिंग बन रही है। यहाँ पे बन रही है जी बच्चा पार्टी 45 बन रही है। ठीक हो गया? 45 में से 5 काउंट पर मिनट तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस करने पड़ेंगे? क्योंकि बैकग्राउंड है बेटा। सो 45 में से अगर आप माइनस करोगे 5 तो यू विल गेट 40 काउंट्स पर मिनट हो गया। ठीक है? व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप? ओके, सो 40 को डिवाइड करो, 20 आ जाएगा। एग्री? अब बेटा ध्यान से, पहले मैं मिस्टेक करूंगा फिर उस मिस्टेक को करेक्ट करूं। अगर मैं इस 20 को इस ग्राफ से चेक करना शुरू कर दूं, ओके, ग्राफ से मैंने चेक किया तो ये मुझे कुछ यहां पे मिलेगा जस्ट बिकॉज कि मैं वाई एक्सिस की तरफ इसको एक्सटेंड करके लेके आऊंगा। क्या ख्याल है? ये लीजिए, तो ये तो मुझे बेटा मिल रहा है 2.5 से कुछ डेज ऊपर बन जाएगा। तो बहरहाल अगर मैं 2.5 को क्लिक भी कर देता हूं तो ये भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा बेटा। मैंने अगेन बताया, जैसे काउंटर का मैंने बताया ना, इसी तरह मैं ग्राफ का बता रहा हूं। ये ग्राफ तो बैकग्राउंड एडिशन को इन्वॉल्व करके चल रहा है ना। सो 20 तो आपने बैकग्राउंड के बगैर निकाला है। एग्री? तो 20 में दोबारा 5 ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 25 बेटा। अब आप चेक करोगे कि 25 कहां पे है जी। 25 यहां पे है, दिस वन, और ये आपको मिल गया। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप? इस ग्राफ से जो शो हो रही है वो कितनी है आपकी? 2 डेज है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर? पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया, 40 आंसर निकाला, 40 से आप किस पे आए? 20 पे आए। ठीक हो गया? और हाफ लाइफ कितनी है? 40 से 20 में आने में कितनी डेज लगते हैं? ये 2 डेज लगते हैं। 20 में दोबारा ऐड करोगे 5। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ से आपने डिपिक्ट करना है वेयर इज द टाइम, वेयर इज द हाफ लाइफ, सो यू मस्ट हैव टू ऐड 5 with your final result which is the 20, so you get so you can easily compare the values on the y-axis with the values on the x-axis. 25 को compare करोगे with the x-axis value. Done? जी बेटा, ये MCQs ज़रा ध्यान से देखिएगा। Solid cesium 137 decays by the emission of the beta particle to form solid barium which is 137 which emits a gamma ray. ठीक हो गया? द बेरियम अंडरगोज नो फर्दर डिके, दैट्स मीन आपके पास 2 ही डिके हो रहे हैं बेटा। एक हो रहा है बीटा डिके, एक हो रहा है गामा डिके। द हाफ लाइफ ऑफ सीजियम इज 33 years. ओके, मास कितना है बेटा? 2 ग्राम। द डायग्राम शोज द रेडिएशन डिस्टेंस कितना रख दिया? 5 सेंटीमीटर। द डिटेक्टर रजिस्टर्ड काउंट रेट, काउंट रेट भी कितना आ गया? ओ भाई कहना क्या चाहता है? ये तो काफ़ी चीज़ें बताता जा रहा है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओके हो गया? अच्छा जी, तो कहाँ से शुरू करें? एंड से शुरू करें, पहले से शुरू करें? चले पहले से शुरू कर लेते हैं। ये नहीं जी बेटा, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ आपके सामने, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया? ये बेटा कौन सा ब्लॉक बना लिया? ये वही ब्लॉक बना लिया जो कि ये वाला है। ठीक हो गया? अच्छा जी बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना है बेटा, शाबाश, ध्यान से फोकस कीजिएगा। अभी बेटा
अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो इस सारे बॉक्स को मैं क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। ज़रा ध्यान से प्लीज़ समझिएगा, ठीक हो गया। और ये रेड कलर को जो बेटा बॉक्स है, मुझे वर्टिकल हाईलाइट करना चाहिए था, चलें फिर दोबारा इरेज कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो पूरा का पूरा बेटा बॉक्स है जो आपके सामने अभी शो हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट बना के। ये सारा का सारा इस टाइम बॉक्स जो है ये किसका है, ये है आपके पास जो कि स्टार्ट में आपका नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा है, वो आपके सैंपल का नाम लिखा हुआ है ऑब्वियसली। तो ये बेटा कौन सा है, ये है इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, दिस वन इज सीजियम, ठीक हो गया। ये क्या है, मैं इसको रेड कलर का बेटा शो कर दिया, दिस वन इज सीजियम, सीजियम 137, ओके हो गया। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, आफ्टर 1/2 लाइफ, ओके इसका मैस कितना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ बेटा आपको, 2 माइक्रोग्राम या 2 ग्राम, चलो अभी फिलहाल ज़हन में रख लो, ठीक है। 1/2 लाइफ बाद इसने कितना रह जाना है, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, तो ये सारा ही इरेज हो गया। चलें, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि इस तरह ही हो जाएगा। ओके मैं दोबारा बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसलिए क्या था मैं तक ये ले 1/2 लाइफ बाद बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, शाबाश, इतना हो जाएगा। एग्री, हाफ रह जाएगा ना, कौन हाफ रह जाएगा, सीजियम हाफ रह जाएगा, एग्री के नहीं, ठीक हो गया। अच्छा अगर तो सीजियम हाफ रह गया तो बाकी जो रिमेनिंग है बेटा, रिमेनिंग क्या है आपके पास, जो सीजियम है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीजियम बेटा जी कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बेरियम में, एग्री, किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम में। और बेरियम भी कौन सा, 137, एग्री। या चलें इसको मिटा दे, तो बस आपको इतना पता हो, तो बेरियम को बेटा मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ, एग्री। तो ध्यान से प्लीज देखिएगा, ये जी बेटा मैंने किससे शेड कर दिया, ब्लू कलर से शेड कर दिया, ठीक हो गया। थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी खैर है, ओके हो गया। अच्छा जी, ये ले, अब मुझे बताइए कि क्या पहला एमसीक्यूज वैलिड है। पहला एमसीक्यूज कह रहा है कि द ब्लॉक ऑफ सीजियम इज, ठीक है, इसमें क्या है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 माइक्रोग्राम। तो बेटा देख के बताओ, क्या ये 1 माइक्रोग्राम आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, नहीं बेटा ये किसी सूरत 1 माइक्रोग्राम नहीं है। सीजियम पहले कितना था, 2 माइक्रोग्राम, अब ये रिड्यूस होके बेटा रह गया है सीजियम, सीजियम कितना रह गया है, 1 माइक्रोग्राम, और बेरियम कितना बेटा, 1 माइक्रोग्राम। तो टोटल कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, 1 + 1 दिस विल बी अगेन, इसका मतलब है ब्लॉक तो उसका मैथ तो डिक्रीज हुआ ही नहीं है, ब्लॉक का मैथ तो वो पहले 1 था, कन्वर्ट हुआ, हाफ लाइफ बाद 2 में से कितना रह गया बेटा, वो 1 रह गया, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई का मैथ डिक्रीज होता है। लेकिन ओवरऑल मैथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ सेज दैट मैथ रिमेन द सेम, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, दैट्स मीन कि आपके पास जो मैथ है बेटा वो कंजर्व रहा है। क्यों, क्योंकि पहले सीजियम का मैथ था 2 माइक्रोग्राम, वो कन्वर्ट हुआ कितने माइक्रोग्राम में, 1 रह गया, क्योंकि वो पेरेंट था, कितना बना दिया, 1 माइक्रोग्राम, किसका, बेरियम का। तो टोटल मैस कितना रहा इस ब्लॉक का, सेम रहा, कितना, 2 माइक्रोग्राम। तो क्या ये आपको बात सही लग रही है, ये बात सही नहीं है बेटा। द मैस ऑफ द ब्लॉक इज 2 माइक्रोग्राम, कब, 33 ईयर्स बाद, ओके हो गया। आगे चलते हैं, आई होप सो ये पॉइंट आप पिक कर पाए होगे। After 66 years, the sample contains 1.5 microgram of barium. So what does it mean? क्या, अच्छा अब ज़रा देखिएगा, कहता है कि 66 ईयर्स बाद आपका बेरियम का कितना रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता, पहले 2 होता है, फर्स्ट हाफ लाइफ 1 रह जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ 0.5 रह जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ 0.25 रह जाएगा। क्या ऐसा ही नहीं है पॉसिबल बेटा। सो अगर यहाँ पे बेरियम कितना है, 0 ग्राम, यहाँ पे बेरियम कितना हुआ, 1, यहाँ पे बेटा बेरियम कितना हो गया, 1.5 माइक्रोग्राम्स हो गया बेटा। तो ये बात आपकी ठीक है, ठीक हो गया। अगर इसको ब्लॉक से कंपेयर करना चाहते हो तो ये ऐसे ही समझ लो जैसे यहाँ पे आप एक और लाइन लगा दो, ठीक हो गया, और इसको आप किससे शेड कर देंगे, इसको आप अगेन बेटा शेड कर दो, ब्लू कलर से शेड कर दो, ओके हो गया। ये ले जी, ये अब कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन आई होप सो कि आप पॉइंट समझ पाए होंगे, ठीक है। सो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारा का सारा बेटा बेरियम में कन्वर्ट हो गया, डन, ओके। तो ये तो करेक्ट है। विद 5 सेंटीमीटर, इसको एक ठीक है हमारा, विद 5 सेंटीमीटर ऑफ द लेड बिटवीन द ब्लॉक एंड द डिटेक्टर, द काउंट रेट इज जस्ट
above the background level. कहते हैं with the 5 सेंटीमीटर ऑफ लेड बिटवीन द, लेड रख दिए जी बीच में, उससे क्या होगा, जस्ट अब बिल्कुल ठीक है, लेड तो आपके गैमा रेडिएशन को भी स्टॉप कर लेता है। यहाँ तो निकल ही बेटा बीटा और कौन सी रही है, गैमा उसके बाद निकल रही है, तो बीटा को तो स्टॉप करेगा ही करेगा, तो गैमा को भी स्टॉप कर लेगा। क्लियर हो गया। और अगर ये स्टॉप कर गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो काउंट रेट है उसमें सिर्फ बैकग्राउंड रह जाएगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, शाबाश। With 2 mm of aluminium between the rock and the detector, the count rate is reduced. ये भी ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि 2 mm एल्यूमिनियम के जब शीट दरमियान में रखोगे डिटेक्टर और ब्लॉक के दरमियान, दैट्स मीन कि आप लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही स्टॉप कर लोगे 2 mm से भी। बाकी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे बेटा, वो उसके लिए आप 5 mm कर लो, सेंटीमीटर में कर लो तो वो भी रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 mm भी लगाओगे तो आपके पास रीजनेबल चेंज आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। सो ओनली ए इज अवर करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर, सॉरी। ओके, द रेडियोएक्टिव सोर्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 0.5 आवर्स, डिटेक्टर रीडिंग्स ऑफ 6000 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, बैकग्राउंड इग्नोर कर दिया। तो बेटा ये जल्दी से कर लेते हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहेगा। हाफ लाइफ कितनी है, ओके 6000, फर्स्ट हाफ लाइफ 3000 बेटा, सेकंड हाफ लाइफ 1500, फिर कितने 750। मुझे कैसे पता चला कहाँ तक आए हो, 1.5 आवर्स तक आना है बेटा। सो यहाँ पे 0, ये 0.5, दिस विल बी फॉर 1, और ये किस पे हो जाएगा 1.5। तो फर्स्ट 2 3, टोटल n की वैल्यू क्या है 3। ये क्या हो जाता है, बताया था आपको, ये रिमेंड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये एक्चुअल हो जाता है। और टोटल हाफ लाइफ कितनी होगी, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट जी बेटा, द नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव आयोडीन emits बीटा पार्टिकल एंड हाफ लाइफ इज 8 days. डिकेज टू प्रोड्यूस xenon 131. बीटा पार्टिकल हो रहा है बेटा, बीटा डिके हो रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस डिके इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, हाफ लाइफ 8 days है, आफ्टर 8 days नो मोर बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड। नहीं, ये गलत है बेटा। ज़रूरी नहीं कि एक हाफ लाइफ बाद वो मटेरियल अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए। मैंने आपको बताया था कितने साल लग जाते हैं, कितने महीने लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा हमें इसको इनकरेक्ट मानने चाहिए। या तो क्योंकि ये तो चलो मुझे पता है कि आयोडीन 131 से xenon 131 तक कैसे आता है, ये लंबा चेन प्रोसेस है, इतना शॉर्ट नहीं है, तो मुझे वैसे ही पता है। लेकिन आपके लिए जो चीज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होगी उसको आप करेक्ट नहीं मानोगे, ठीक है। फिलहाल ये तो 1 हाफ लाइफ बाद कोई ऐसा मेरे ख्याल से फिलहाल तो शायद मैंने गलत बोल दिया। ज़्यादातर मटीरियल्स ऐसे जो कि एक हाफ लाइफ बाद स्टेबल नहीं होते। शायद कोई मटेरियल ऐसा गूगल पे लिखा हो जो कि एक हाफ लाइफ बाद स्टेबल हो जाता है, एटलीस्ट आयोडीन नहीं होता। ठीक हो गया। आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सॉरी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लिहाजा आप इसको करेक्ट नहीं मानोगे। आफ्टर 8 days द नंबर ऑफ द xenon 131 एटम्स हैज हाफ्ड। किसके हाफ रह जाएंगे जी आपके पास बेटा रह जाएंगे xenon के एटम हाफ रह जाएंगे। आयोडीन किस में बन रहा है, तो ये भी तो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। किसके हाफ रहने चाहिए, आयोडीन के हाफ रहने चाहिए थे। ठीक हो गया, ये भी गलत है। आफ्टर 16 days द आयोडीन 131 हैज़ डिकेड कम्प्लीटली। 16 days बाद डिके हो जाएगा कम्प्लीटली। तो क्या ये ठीक है, नहीं, ये अगेन कम्प्लीट ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया था कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये लॉन्ग चेन रिएक्शन है। 16 days बाद कंप्लीट नहीं होगा, डिके कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, कन्वर्ट होते रहते हैं। आफ्टर 16 द नंबर ऑफ आयोडीन न्यूक्लियर हैज रिड्यूस्ड टू 1 क्वार्टर। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इमेजिन कर लो कितने हैं, इमेजिन कर लेते हैं हम। फर्स्ट हाफ लाइफ 1 हो गए, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते 1। फर्स्ट हाफ लाइफ बाद कितने हो जाते हैं 1/2। सेकेंड हाफ लाइफ बाद कितने हो जाते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 1/4। सो फर्स्ट हाफ लाइफ दिस वन, ये कितने डेज लगाएगी बेटा, 8 days लगाएगी। सेकेंड हाफ लाइफ कितने डेज लगाएगी, 8 + 8 16। सो 16 days बाद एलिमेंट कितना रिड्यूस हो जाता है बेटा, 1/4 पार्ट तक रिड्यूस हो जाता है। ए क्यों गलत है, क्योंकि उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, नो मोर बीटा डिके पार्टिकल्स एमिटेड। ऐसा नहीं होता, 1-2 हाफ लाइफ बाद मटेरियल अनस्टेबल से स्टेबल नहीं होता। आफ्टर 16 days ये भी गलत हो गया, क्योंकि आयोडीन जो है वो डिके अगेन नहीं होता। मेरे ख्याल से हो गया ये, इसको काफ़ी हमने समझ लिया, ठीक है। अ सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव इमिट्स, ओके, चलिए इसको मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।